हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त हरमनिंदर। तो एक होर सैशन लेके पीसीएस ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। तो आई होप ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ so we have first question. So permafrost, the perennially frozen soil in high latitude and altitude regions, has exhibited increased thawing due to global warming. Which of the following may be its consequences? हाँ जी बच्चे, so options are there. ठीक है। It may lead to positive feedback loop, या it may pose a threat to local ecosystem. It may cause damage to local infrastructure. So which of the statement given above is are correct? ठीक है। So you have to find out one only, 1 and 3 only, 2 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है। You have to find out। हाँ जी, इनू ध्यान ना देखो और आंसर करने की कोशिश करो। तो परमाफ्रॉस्ट एज वी ऑल नो कि ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। तो आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਡੀ ਆਏਗਾ। 1, 2 ਐਂਡ 3 ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding air quality index, ठीक है, AQI. So first statement is it is a color coded index and was launched in 2014, ठीक है। And the next statement is कि there are 6 categories in air quality index, ठीक है। So which of the statement given above is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2 या neither 1 nor 2? हाँ जी, क्या आएगा इसमें? शाबाश करो आंसर जरा, शाबाश शाबाश। हाँ जी, क्या आएगा इसमें आंसर? ये अपने हाँ जी सोच के इसको करो। तो बच्चे एज यू ऑल नो, अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो अब एयर क्वालिटी जो है तो दिल्ली में देखो अभी भी, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 प्लस जा रहा है। तो 450 प्लस जो है हम स्फीयर काउंट करते हैं। और जब सपोज जैसे दिवाली है या कोई और फेस्टिवल या स्टबल बर्निंग, कोई भी रीजन, वट एवर द रीजन, तो ये कई बार 800 तक भी पहुंच जाता है, 800 प्लस तक चला जाता है। तो बहुत स्फीयर कंडीशन होती है। तो इसके लिए ये जो कलर कोडेड इंडेक्स है ये कब लॉन्च करा गया था? 2014। और इसमें 6 कैटेगरीज हैं। तो बच्चे इसमें क्या ऑप्शन है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2? तो इसका आंसर जो है बच्चे वो बोथ 1 and 2 आएगा, क्योंकि ये जो कलर कोडेड इंडेक्स है ये 2014 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसकी जो 6 कैटेगरीज है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। तो 450 प्लस जो है तो वो सीवियर कैटेगरी में आ जाती है। उससे पहले ये गुड होती है, सेटिस्फैक्टरी होती है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट, फिर पुअर, वेरी पुअर, तो फिर उसके बाद सीवियर हो जाती है। तो ये है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आंसर इसका सी आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज? ठीक है बच्चे, मिनामाटा डिजीज जो है तो वो कौन सी हैवी मेटल से होता है बच्चे? मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, क्या आएगा? हाँ जी, कौन से मेटल से मिनामाटा डिजीज जो है वो हो सकती है, ये आपने बताना है। हाँ जी बोलो, शाबाश। तो मिनामाटा डिजीज जो है बच्चे, मिनामाटा डिजीज, ठीक है, अब ये नाम कहां से पड़ा था? तो जापान के पास एक जगह है जिसका नाम है मिनामाटा बे।
मिनामाटा बे जो है जापान के पास जगह थी, मिनामाटा बे, ठीक है। अब वहां पे क्या था कि मान लो आसपास जो उनके पास इंडस्ट्री थी, तो वहां से जो एफ्लुएंट जो थे, ठीक है, मान लो यहां से सीवेज वगैरह जो भी सारा है ना, तो अब इंडस्ट्री थी ये मरकरी की, ठीक है। आंसर भी इसका मरकरी आएगा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आंसर इसका जो है वो मरकरी आएगा, ठीक है। तो मरकरी थे, वो पास की जो वाटर बॉडी थी, तो उसमें ये मरकरी जो है वो छोड़ देते थे, डाल देते थे। अब वहां से ये मरकरी फिशेस में चली गई, और वहां के लोग जो थे वो सी फूड बड़ा पसंद करते थे, तो सारे फिशेस को खाते थे आराम से। फिश को खाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी में ना सिम्टम जो आने लगे हैं बड़े अजीब से, ठीक है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ये सारा कुछ हो गया। तब उन्हें लगा कि भाई हमने कुछ गलत खा लिया है। तो जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि वो जो सारे पर्सन थे उनकी बॉडी में हाई मर्करी कंटेंट पाया गया। तो जब साइंटिस्ट ने फर्दर सर्च करा तो उनको पता चला कि भाई वो जो सी फूड खा रहे हैं, जब उनसे पूछा कि भाई आपने क्या खाया था रिसेंटली, तो वो कहते हैं कि हम तो नॉर्मली रूटीन में सी फूड खाते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने जाके सी फूड को सर्च करा तो देखा भाई सी फूड में बहुत ज्यादा मर्की कंटेंट है। तब उन्होंने फिर ये सारी सर्च करी कि ये मर्करी कहां से आया। तो उन्होंने देखा कि आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो कि मरकरी को सीधा समुद्र में डाल रहे हैं। तो उस जगह का नाम था मिनामाटा बे, वहां से ये जो है पूरी डिजीज जो है स्प्रेड हुई, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो मिनामाटा डिजीज जो है ये मरकरी से होती है, ठीक है। तो क्रोमियम से, कैडमियम से जैसे आपके पास इथाई डिजीज है वो हो जाती है, ठीक है। नाइट्रेट से हो जाती है, अगर मान लो नाइट्रेट बॉडी में ज्यादा चले जाएं, ठीक है, तो ये आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम कर सकती है, आपकी ब्लू स्किन हो जाएगी, ब्लू कलर की स्किन हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से। तो ये सारी चीजें जो है आपने ख्याल रखना है, ठीक है। कैडमियम में क्या होता है कि भाई जो आपके जॉइंट होते हैं बॉडी के वो बहुत ज्यादा पेन करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना हाय हाय बड़ी पेन हो रही है ना, तो इताई का मतलब क्या होता है, आउच आउच, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में क्या कहते हैं, है ना, तो पेन होती है, तो वो चीज है। तो ये है कैडमियम। तो यहां पर आंसर फिर क्या आ जाएगा, आंसर इसका ए आ जाएगा, मरकरी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मरकरी आपने याद रखना है। हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद है नेम द प्लेस वेयर द मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। हाँ जी, ये आपने प्लेस बतानी है जहां पर मिट्टी बचाओ मूवमेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट करी गई थी। तो ए ऑप्शन है दरभंगा बिहार, बी ऑप्शन है मैसूर कर्नाटका, सी है थाने महाराष्ट्र, डी है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। हाँ जी, क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, नेम द प्लेस वेयर द मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, दरभंगा बिहार, मैसूर कर्नाटका, थाने महाराष्ट्र, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। हाँ जी, क्या आएगा, हाँ जी, तो डी आंसर आ जाएगा बच्चे, होशंगाबाद मध्य प्रदेश इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये आपने याद रखना, ठीक है, मिट्टी बचाओ मूवमेंट, ठीक है। आगे है बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडी, increase in water temperature decreases the dissolved oxygen in water which adversely affect the aquatic life। हाँ जी, ठीक है। तो ये दो चीजें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग कोड्स, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। क्या आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या आएगा, हाँ जी बोलो क्या आएगा। तो बायोलॉजिकल डिमांड, देखो बच्चे ये जो सारा सिस्टम है ना, तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे मान लो ये जो बायोलॉजिकल डिमांड वाला जो सिस्टम है, तो ये कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन से भी जुड़ा हुआ है, यूट्रोफिकेशन है ना, यूट्रोफिकेशन। तो हम क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे फील्ड्स हैं, खेत हैं यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पर हमने क्या करा, बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल दिए एनपीके। अब मान लो बारिश हुई तो ये सारे बहकर यहाँ पर वाटर बॉडीज में चले गए, वाटर बॉडी में चले गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब अनवांटेड अब वाटर में जाएंगे, ये जो सपोज न्यूट्रिएंट्स हैं,
फर्टिलाइजर है, जब ये वाटर में जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाएगी, जिससे अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हो जाएगा और इसके ऊपर एल्गी की लेयर बन जाएगी ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं उसको, एल्गल ब्लूम। अब जब एल्गल ब्लूम होगा, जब यहां पर लेयर बन जाएगी एल्गी की, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे प्लांट्स हैं यहां बेस के ऊपर, उनको सनलाइट मिल नहीं पाएगी। ऊपर एल्गी की लेयर है तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देगी, उससे क्या होगा, इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जो इनकी फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये प्लांट क्या हो जाएंगे, डेड। और अगर डेड हो रहे हैं तो इनकी डिकेइंग भी होगी माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया है, वो जो माइक्रोब्स हैं जो इसको डिके करेंगे, जो इसको डीकंपोज करेंगे, तो जब वो इसको डीकंपोज करेंगे भाई, उस प्रोसेस में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई। यहां पर क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन हो गया। उसके बाद ये सारे जो फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट है, जो वाटर बॉडी में गए, वहां पर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एल्गी होगी या प्लांट होगी, उससे नीचे सनलाइट जानी बंद होगी, ये प्लांट्स डेड हो गए, डिकेइंग होगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो है माइक्रोब, तो ये ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इसकी पानी में से, है ना, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि जब वो डिके हो रहे थे नीचे प्लांट्स, तो वो ऑक्सीजन जो है माइक्रोब्स आसपास से लेंगे तो वो उसको वाटर डेफिशिएंट कर देंगे। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इससे भी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आ जाएगा बच्चे, बोथ 1 और 2 दोनों जो पॉइंट है इसके वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, दोनों जो इसके पॉइंट हैं वो बिल्कुल सही है, ये आपने नोट करना है। ठीक है, और इसमें जो है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हम पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन भी पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो जितना वेस्ट मटेरियल होगा, जितना वेस्ट वाटर बॉडी में होगा, तो भाई उतने ज्यादा बैक्टीरिया काम पे लगेंगे, उतना ज्यादा उनको डीकंपोज ज्यादा मटेरियल करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन जो है पानी में से लेके यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये एक ना विशियस साइकिल है, एक खतरनाक साइकिल है। अगर मान लो एक बार डेफिशिएंसी होगी, तो जो मैरीन एनिमल्स रह रहे हैं पानी में, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना पानी में से, तो वो तो मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन के। फिर उनकी बॉडी भी जो है डेड डिकेइंग मैटर में आ जाएगी, फिर उनकी डीकंपोजिशन होगी और ऑक्सीजन डिप्लीट होती जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। हाँ जी, बताओ बच्चे, इसमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन बीइंग मेड है, ह्यूमन मेड है। तो आपको पता है बच्चे, ये अर्थ सरफेस है, ऊपर से ये जो सन रेज आती हैं, ये क्या होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। तो ये एटमॉस्फेयर में से निकल के आ जाती है, पास होके आ जाती है। तो यहां पर जब हीट एब्जॉर्ब होती है अर्थ सरफेस से पे, तो जब अर्थ जो है वो करती है, एमिट करती है, अर्थ जो है सरफेस एमिट करता है, ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। हाँ जी, क्लियर हो गया, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन है ये ट्रैप हो जाती है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, बाहर नहीं जा पाती, तो ये करती है क्या, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लगता है। अब यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कई चीजों से लगता है, ठीक है, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, जो कि मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाती है ना अर्थ के सरफेस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सारे ह्यूमंस छोड़ते हैं। मीथेन की बात करें, ये राइस फील्ड जो है हमारे पैडी फील्ड है ना, जहाँ पे चावल उगाते हैं, उन खेतों में से भी निकलती है। जो हमारे कैटल हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें से भी निकलती है, खास करके जो पशु है, ठीक है, कैटल है। और वाटर वेपर तो हर जगह से निकलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, जितने भी लेक है, रिवर है, वहां से गर्म होकर पानी वाटर वेपर बन के जाएगा। पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चे, ये एक ऐसी एंटिटी है, ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड है, इसको फैक्ट्री में ही बनाया जाता है और कहीं पे नहीं ये बनता। और ये जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं,
जो हमारे एरोप्लेन के एमिशंस होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और ये हमारे जो एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करते हैं। तो ये सारा, हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आपने याद रखने हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। ग्रीन हाउस गैस आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जैसे हेक्साफ्लोराइड जो है, ठीक है, कार्बन हेक्साफ्लोराइड जो है या सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये सारे के सारे जो हैं अर्थ एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और यहां पर जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। आगे है अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस कम। हाँ जी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है इसमें से कौन सी जगह आती है ये आपने बताना है बच्चे। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या नन ऑफ द अबव। हाँ जी, बताइए। तो यूनेस्को आपको पता होगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है जी। और यूनेस्को जो है इसका मल्टीपल जो काम होता है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, तो ये सारा। हाँ जी, क्या आएगा बताओ बच्चे। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट जो है बच्चे, तो इंडिया की पहली नेशनल पार्क थी, ठीक है, और पहला टाइगर रिजर्व जो है वो भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बात करनी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, ठीक है। तो अब उसमें आंसर ये आ जाएगा, नंदा देवी जो है एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है ये आती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करें रिसेंटली, तो पहले तो 43 यूनेस्को साइट थी हमारे इंडिया में, है ना। तो 43rd कौन सी थी, मोय डैम्स, ठीक है, जो कि असम में अहोम डायनेस्टी की बरियल ग्राउंड थी, ठीक है। फिर 44 नंबर पे अभी रिसेंटली यूनेस्को ने किसको ऐड करा है, मराठा मिलिट्री फोर्स, मराठा मिलिट्री फोर्स, ठीक है, इसको 44th नंबर पे जो है ऐड करा गया है, ठीक है। तो ये यूनेस्को की साइट है और पूरे वर्ल्ड में ये जो यूनेस्को है, ठीक है, नई नई जो साइट है उसको डिक्लेयर करती रहती है, जिनका कल्चरल हेरिटेज से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। और वो जो साइट है वो नेचुरल साइट भी वो हो सकती है, कोई माउंटेन भी हो सकता है, कोई नेशनल पार्क भी हो सकती है, जिसका अर्थ की ज्योग्राफी से कोई पुराना जो है ज्योग्राफिकल जो हिस्ट्री है हमारी अर्थ की, उसमें अगर उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी फिर यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओनली 3, ओनली 1 and 2, ठीक है, ओनली 2 and 3 या 1, 2 and 3, क्या आएगा इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, शाबाश। हाँ जी बच्चे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, शाबाश शाबाश। हाँ जी बोलो बच्चे, गैस करो, शाबाश, क्या आएगा इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाँ जी बोलो, करो आंसर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, आंसर इसका ए आएगा, ओनली 3, ओनली 3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ओनली 3, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसमें नहीं आती, ठीक है। ओजोन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस में जो है आती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, इसको हम उसमें कंसीडर नहीं करते, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में, तो ये आपने याद रखना है।
ओनली 3 आंसर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, पोल्यूटेंट है बड़ी जबरदस्त। ठीक है, और जो हमारी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा जो एमिट होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो नॉट ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ओजोन जो है वो भी जो है ग्रीन हाउस गैस एक्ट करती है। ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी लेयर होती है, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पार्ट में जो ओजोन रहती है हमें यूवी लाइट से बचाती है, अदरवाइज हमारी स्किन जो है बिल्कुल सड़ जाएगी, लेकिन ये इसको हमें बचाती है। ठीक है, तो ये है। आगे है विद द रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इट इज फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी, it depletes the dissolved oxygen, human activities are mainly responsible for the eutrophication। तो क्या आंसर आएगा? ओनली 1, 1 and 2, ओनली 2 and 3 या 1, 2 and 3? क्या आएगा? हाँ जी, शाबाश, सोचो क्या आंसर आएगा। हाँ जी, बोलो बच्चे, बड़ा सिंपल है, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। करो जरा आंसर। With the reference to eutrophication, which of the following is are true? It is phenomenon of nutrient enrichment of a water body. It depletes the water of dissolved oxygen. Human activities are mainly responsible for the eutrophication. तो क्या आएगा? Only 1, only 1 and 2, 1, 2 and 3 या only 2 and 3? ठीक है, देखो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो है तो वो तो यूट्रोफिकेशन से होती है, ये तो सही है। इट डिप्लीट्स द वाटर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी हमने बात करी है कि भाई अगर ऊपर एल्गल ब्लूम बन गया तो ये फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम करेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन। लो जी, डी आंसर आ गया आपका, तीनों सही है। ये ह्यूमन एक्टिविटी सही, हम ही फर्टिलाइजर डाल डाल के उसको करते हैं ना न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये यूट्रोफिकेशन होगी, जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया था, यूट्रोफिकेशन से एनपीके फर्टिलाइजर वाटर बॉडी में गए, एल्गी बन गया, नीचे प्लांट डेड हो गए, उन्होंने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को है ना खर्च कर दिया, तो इस तरीके से ये सारा काम होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है वो डी आएगा, 1, 2 and 3। ठीक है, तीनों पॉइंट सही है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी, डिप्लीट द वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी सही है, और ह्यूमन एक्टिविटी से कॉज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इज नोन एज। जो ये क्वेश्चन हमने आपने पहले भी करा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। मान लो यहां पर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सपोज यहां पर ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, अब यहां पर साथ में एक लेक है, तो लेक इकोसिस्टम है। यहां पर जो ओवरलैपिंग है, जहां पे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, लेक इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, तो यहां पे दोनों का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, ओवरलैपिंग पार्ट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल जोन को क्या कहते हैं? इकोटोन, इकोटाइप, इकैड या इकोस्फीयर? बताओ जरा, शाबाश, करो जरा आंसर, क्या आएगा? हाँ जी, की आएगा ट्रांजिशनल जोन। तो बच्चे इसको हम क्या कहते हैं? इसको ना इकोटोन कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इकोटोन। और इसकी खास बात ये है बच्चे, इसमें जो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इसमें स्पीसीज जो हैं उनमें दोनों इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे लैंड एनिमल्स होंगे, यहाँ पर लेक है तो यहाँ पे मेरीन एनिमल्स होंगे, जहाँ ना ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग पार्ट में एम्फीबियन देखने को मिलेंगे, जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। ठीक है, और यहां पर उन स्पीसीज की जो बहुतात होगी, उनका नंबर है, काफी बड़े नंबर में वो होंगे, और उनको हम कहते हैं, उन स्पीसीज को एज स्पीसीज। जो दोनों इकोसिस्टम के ओवरलैपिंग पार्ट में जो करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं स्पीसीज, ठीक है, जिनका नंबर जो है ऑर्गेनिज्म का काफी ज्यादा होता है, उनको फिर हम एज स्पीसीज कहते हैं, और इस जगह को कहते हैं इकोटोन। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। ट्रांजिशनल जोन क्या है? इकोटोन। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटीज। तो अब क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, पोलन, पेस्टिसाइड, माइट।
विच ऑफ द एंटिटीज गिवन अबव कैन बी बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट, इसमें से बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट कौन सा हो सकता है? हाँ जी, क्या आएगा? कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटीज, बैक्टीरिया, फंगी, पोलन्स, पेस्टिसाइड, माइट। ठीक है, इसमें से बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट जो है वो कौन सा है? 1 and 2 ओनली, 3 and 4, 1, 2 and 3, ठीक है, 1, 2, 3 and 4, क्या आएगा? बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट, बायोलॉजिकल। तो पेस्टिसाइड तो हम भाई फैक्ट्री में बनाते हैं। पेस्टिसाइड तो एक क्या है, एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जिसको हम बनाते हैं पेस्ट को मारने के लिए फैक्ट्री में। तो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट इसमें से बैक्टीरिया, फंगी, पोलन, माइट सारे हो सकते हैं, है ना। तो 4 नहीं हो सकता, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3 and 5, ठीक है। पेस्टिसाइड जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट अर्थ समिट। तो हमें पता है कि एजेंडा 21 वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट वाज अडॉप्टेड ऑन द फर्स्ट अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं या फिर हम रियो समिट भी कहते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं। ये अपने याद रखना, एजेंडा 21 जो है तो वहां पर अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा। और प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ जी, प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट हो गया, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, या नन ऑफ द अबव। हाँ जी, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे। प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या है? हाँ जी, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर मेन जो इसका है वो सी आंसर आएगा। मेन इसका था कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको कंट्रोल करना है। जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, उसको हमने कंट्रोल करना है, क्योटो प्रोटोकॉल। और दूसरी तरफ अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो उनका फोकस किस पे है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना, ठीक है, टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है उसको कंट्रोल करना, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डीडीटी एंड मर्करी आर एग्जांपल ऑफ। हाँ जी, डीडीटी एंड मर्करी, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन जो है, ठीक है, तो ये है डीडीटी एंड मर्करी आर एग्जांपल ऑफ। ये क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ये आपने बताना है। हाँ जी, बोलो बच्चे, ये जो डीडीटी एंड मर्करी है ये क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये डीडीटी जो है, ठीक है, तो ये इसका यही मेन ड्रॉबैक था कि भाई एक बार इसको बना के अपने जैसे नेचर में डाल दिया, एनवायरमेंट में डाल दिया, तो भाई ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन जो है ये खत्म ही नहीं होगा, ये डिकम्पोज ही नहीं करेगा। तो इसको हम डी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो आंसर इसका जो है वो डी आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो यही जो है इसका आंसर है डी, ठीक है, इसको याद रखना। हाँ जी, ओके बच्चे, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट सेशन में हम नए क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। सो तब तक थैंक यू वेरी मच। इन एमसीक्यूज को अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।